Good morning, students. Welcome to your English online lecture. Myself, Miss Pooja. I am going to teach you the subject English of Standard First. So, students, in our previous online lecture, we have studied the English grammar revision that we are going to continue from the new topic in this today's online lecture. So, students, for learning English grammar, I request all the students to open your English notebook, your combined book, and also to carry a pencil with you. बच्चों, हमारे पिछले ऑनलाइन लेक्चर में हमने इंग्लिश ग्रामर रिवीजन में दो टॉपिक लेसन नंबर 15 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड लेसन नंबर 17 प्रेपोजिशन, ये दो टॉपिक हमने पिछले ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ा था। आज के हमारे ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे कंबाइंड बुक में से। ओके स्टूडेंट्स, आपको इन टॉपिक को ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है और आपको आपके इंग्लिश के नोटबुक में आज का डेट डाल के, हेडिंग डाल के इंग्लिश रिवीजन आपको नोटबुक में लिखना है। स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू पुट टुडेज डेट, द हेडिंग इंग्लिश रिवीजन, English grammar revision, and you are going to write the topic's name and then the thing I will explain you in the today's online lecture that you will write in your English grammar revision. Okay students, so let us begin with our English grammar revision. So students, क्या आप रेडी हो? अब हम इंग्लिश ग्रामर रिवीजन आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर रिवीजन आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बताने वाली हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आएगा ही तो आपको रिवीजन यानी आपका प्रैक्टिस है तो आपको इसे इंग्लिश नोटबुक में लिखना है। स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन दैट इंग्लिश ग्रामर रिविजन that I am going to explain you the notes, the today's online lecture that you will write in your English notebook because it is important for your semester exam. Okay students, so students put today's date and write it in your notebook, and those students who are not having the English notebook, that is 4-line notebook or school, they will write in any rough notebook but they will note down the notes. बच्चों, जिन स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश 4-line नोटबुक नहीं है वो बच्चे, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल रहेगी, जो भी आपके पास होगी उस बुक में आपको ये नोट्स कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. So, our today's English revision is lesson number 2020, all about myself. बच्चों, अब आप ये सोचोगे कि टीचर ने लेसन नंबर 17 से डायरेक्ट लेसन नंबर 20 क्यों लिया? तो बच्चों, आपके जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, मैं ग्रामर में उन टॉपिक को एज अ रिविज़न कवर कर रही हूँ, बट जो इम्पॉर्टेंट नहीं है या कम इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने नहीं लिया है। इंग्लिश रिवीजन जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
So students, here lesson number 20 all about myself. This lesson is important, so I have taken in the English revision composition. Now students, you all have studied in the senior KG class and also in the English grammar. I have explained you the composition myself. So this is all about myself, that is yourself. You are going to write the details of yourself. The questions are asked to you all and you all will read the question and you all will write the answer in the given space. बच्चों, लेसन नंबर 20 ऑल अबाउट माई सेल्फ आपने आपके सीनियर केजी क्लास में पढ़ा होगा. तो फर्स्ट में भी आपको माई सेल्फ में कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और आपको उस सेंटेंस को पढ़कर आंसर लिखना है. माई सेल्फ मतलब आपके बारे में. आपका नाम क्या है, आप गर्ल हो या बॉय हो, कितने इयर्स के हो, ये सारे डिटेल्स को कहते हैं माई सेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, it is a composition. Let us start with the first sentence. My name is dash. Now students, here why I have kept the dash? Because students you will write your full name. बच्चों, मैंने ये my name is dash फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए डैश क्यों रखा है? आपको आपका खुद का नाम लिखना है, यानी आपको अपना नेम और सर नेम उस ब्लैंक स्पेस में लिखना है. सो स्टूडेंट्स, you all know your spelling, your name, the spelling of your name and the spelling of your surname. Okay students, my name is dash. The students you will write your name. Second one, I am a boy/girl. It means I have written boy and girl. So if you are a boy, you will write BOY boy. If you are a girl, you will write GIRL girl. Okay students? बच्चों, सेकेंड सेंटेंस है आई एम अ boy/girl. अगर आप बॉय हो यानी लड़के हो तो आपको BOY बॉय लिखना है सिर्फ. सो स्टूडेंट्स, you will write I am a boy or a girl. If you are a boy, you will write boy. If you are a girl, you will write GIRL girl. Okay students, now the third sentence, I live in dash. तो बच्चों, I live in dash, आप कहाँ रहते हो? I live in Nalasopara. We all live in Nalasopara. So the spelling of Nalasopara is NALLASOPARA. नालासोपारा. बच्चों, आपको नालासोपारा की स्पेलिंग लर्न करनी होगी. फोर्थ वन, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड. आप कितने साल के हो वो आपको लिखना है. इफ़ यू आर 6 years, यू विल राइट 6. इफ़ यू आर 7, you will write 7 years old. Okay students? Fifth sentence, I study in standard first. फिफ्थ वाला सेंटेंस है मैं स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो आपको लिखना है फर्स्ट. सो स्टूडेंट्स, यू विल राइट फर्स्ट. सिक्स्थ वन, आई गो टू डैश स्कूल. आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? द नेम ऑफ द स्कूल यू विल राइट. आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है. डिवाइन लाइफ हाई स्कूल. आई गो टू डिवाइन लाइफ हाई स्कूल. DIVINE डिवाइन, LIFE लाइफ, HIGH हाई स्कूल. ओके स्टूडेंट्स? सेवेंथ वन, डैश एंड डैश आर माई फ्रेंड्स. अब आपको आपके फ्रेंड्स का नाम लिखना है. आप अपने मन से आपके फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हो.
यहाँ पर मैंने लिखा है रोहन एंड टीना आर माई फ्रेंड्स। ROHAN रोहन एंड टीना TEENA टीना आर माई फ्रेंड्स। So you can write your friend's name. Rohan and Tina are my friends. 8-1 My best friend's name is dash. Soham SOHAM सोहम। आपको आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है। मैंने एग्जाम्पल लिखा है सोहम। आप आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स। 9th one I love to play dash. Now I have written cricket. I love to play cricket. CRICKET cricket. Now students, you are going to write your favorite game that you like to play. Okay students, I love to play cricket. बच्चों 9th सेंटेंस में आपको आपका फेवरेट गेम लिखना है जो आपको पसंद है। यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिकेट। 10th one I play with बॉल इन द इवनिंग। मैं शाम को बॉल के साथ खेलती हूँ या खेलता हूँ। BALL बॉल। ओके स्टूडेंट्स। 11th one माई टीचर्स नेम इज़ मिस पूजा। आपको आपके टीचर का नाम लिखना है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल मेरा नाम लिखा है। आप कोई भी टीचर का नाम लिख सकते हो। माई टीचर्स नेम इज़ मिस पूजा। MISS मिस POOJA पूजा। मिस पूजा। 12th one इज़ माई मदर्स नेम इज़ डैश। बच्चों 12th सेंटेंस जो है आपको आपके मदर यानी आपको आपकी मम्मी का नाम लिखना है। तो स्टूडेंट्स सभी बच्चों को पता होगा तो वो अपने मदर से उनका नेम पूछकर वहाँ लिखेंगे। 13th one इज़ माई फादर्स नेम इज़ डैश। 13th one है आपको आपके फादर यानी पिताजी का नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स। सभी लोगों को अपने फादर का नाम यानी अपने पापा का नाम पता होगा तो आपको वहाँ पे उनकी स्पेलिंग लिखनी है। 14th one इज़ आई लव टू ईट डैश एंड डैश। आई लव टू ईट burgers and sandwiches. So I have written burgers and sandwiches. BURGERS burgers. SANDWHICHES sandwiches. बच्चों मैंने लिखा है I love to eat burgers and sandwiches. अब आप लोग आपके मन से कोई भी फेवरेट आपका डिश लिख सकते हो जैसे कि केक हुआ, चॉकलेट्स हुए, पिज़्ज़ा हुए। आपको जो पसंद है आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल मैंने लिखा है बर्गर एंड सैंडविचेस। नाउ स्टूडेंट्स हमारा लेसन नंबर 20 ऑल अबाउट माई सेल्फ कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द लेसन नंबर 20 ऑल अबाउट माई सेल्फ कॉम्पोजिशन। यू विल राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक। बच्चों आपको आपके इंग्लिश के नोटबुक में इसे लिखना है जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से। आपको आपका नेम, आपका कितने ईयर्स के ओल्ड हो, मदर्स नेम, फादर्स नेम वहाँ पर आपको पूछ के लिखना है। बाकी का आप सेम कॉपी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू आवर नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 21। बच्चों अब आपको नया पेज ओपन करके रखना है आपके इंग्लिश नोटबुक का। अब हम हमारे नेक्स्ट इंग्लिश रिवीजन नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ेंगे। लेसन नंबर 21 वर्ड्स। बच्चों इस लेसन में जैसे मैंने आपको लेक्चर के टाइम बताया था अब हम रिवीजन कर रहे यानी रिवाइज कर रहे। स्टूडेंट्स वी आर रिवाइजिंग। सो लेसन नंबर 21 वर्ड्स। शब्द। क्वेश्चन नंबर 1 जॉइन द 2 words टू गेट अ न्यू वर्ड। बच्चों आपको पिक्चर्स दिए गए रहेंगे। आपको उन पिक्चर्स को देखते हुए दोनों पिक्चर को आपको देखकर दोनों का वर्ड जोड़कर आपको आंसर लिखना है। नाउ स्टूडेंट्स दिस लेसन नंबर 21 इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्ज़ाम।
बच्चों ये लेसन जो है 21 वर्ड्स जो अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में आएगा। आपको पिक्चर दिया रहेगा और आपको उन पिक्चर को देख के वर्ड्स को जॉइंट करके लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ रेन, पहला फ़ोटो दिया गया है रेन का यानी बारिश का। सेकंड फ़ोटो दिया गया है बो का, बो यानी हम शर्ट के ऊपर जो बो लगाते हैं, बॉयज़ लोग लगाते हैं जब कोट पहनते हैं, तो रेन प्लस बो, उसका पूरा वर्ड बनता है रेनबो, RAIN, रेन BOW, रेनबो। इन दोनों शब्दों को तैयार करके हमें हमारा आंसर मिलता है रेनबो। सो स्टूडेंट्स, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? By joining the two words we get a new word. Rain plus bow is rainbow. Spelling is RAIN, rain BOW, rainbow. Second one is foot. Foot is your leg's foot. You can see the picture. And then ball. Foot plus ball is football. फुट यानी पैर की एड़ी, आपका फुट प्लस बॉल हुआ आंसर। आपका नया वर्ड आपको मिला है फुटबॉल। ओके स्टूडेंट्स, द स्पेलिंग ऑफ फुटबॉल इज FOOTBALL, फुटबॉल। आपको एग्ज़ाम्स में भी पिक्चर ड्रॉ किए रहेंगे, आपको आंसर लिखना है उन पिक्चर को देखते हुए। स्टूडेंट्स, इन द एग्ज़ाम द पिक्चर will be drawn, you have to write the answer. Okay students, now in your notebook also parents will draw the photo and students will write the name. Parents आपको बच्चों को ड्रॉ करने में उनकी हेल्प करनी है। आपको नोटबुक में भी ड्राइंग बनाना पड़ेगा, तभी आपको इसका मतलब समझेगा और स्टूडेंट्स को इसका मतलब समझेगा। थर्ड वन इज सन plus flower, sunflower. Third one is sun, 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 FLOWER, flower, sunflower. Sun plus flower हमें न्यू वर्ड मिला sunflower. Fourth one is tooth, TOOTH, tooth plus brush, toothbrush. बच्चों फोर्थ वन है टूथ यानी टीथ, उससे कहते हैं टूथ। प्लस ब्रश, आपका टूथब्रश होता है वो ब्रश, टूथ प्लस ब्रश, आपको नया वर्ड मिला टूथब्रश। फिफ्थ वन इज मून, मून प्लस लाइट, मूनलाइट। आपके फिफ्थ पिक्चर में आप देखो मून है, यू कैन सी इन द फिफ्थ पिक्चर द मून इज ड्रॉन एंड द लैम्प इज ड्रॉन। मून प्लस लाइट, व्हाट डज द लैम्प गिव्स? लाइट। अब लैम्प बनाया है, लैम्प से हमें क्या मिलता है? लाइट मिलती है। तो मून प्लस लाइट हमें नया वर्ड मिला मून लाइट। स्पेलिंग ऑफ मून लाइट इज MOON, मून LIGHT, लाइट, मून लाइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन इज अमूल बटर. So normally we eat the butter in the bread, yes or no? Yes. So BUTTER, butter. And the second picture is fly, FLY, fly. Butter plus fly, that is butterfly. Butter यानी खाने वाला बटर जो ब्रेड में लगाते हैं, BUTTER, बटर। और fly, fly यानी इंसेक्ट यानी कीड़ा जो उड़ता है उसे कहते हैं fly, जिसे मक्खी कहते हैं हिंदी में। तो बटर प्लस फ्लाई हमें नया वर्ड मिलता है बटरफ्लाई. ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक दिस यू हैव टू जॉइन द वर्ड एंड राइट द न्यू वर्ड. सेवेंथ वन इज ट्री प्लस टॉप, ट्री टॉप, TREE ट्री, TOP टॉप, ट्री टॉप. सेवेंथ वर्ड है ट्री यानी झाड़ और टॉप यानी जो आप खेलते हो जिसे हिंदी में कहते हैं भंवरा यानी लट्टू. ट्री टॉप, ट्री टॉप. एट वन इज बॉटल, वाटर, बॉटल. एट पिक्चर इज water. In the can you can see water is there
and bottle. Water plus bottle is water bottle. WATER water. BOTTLE bottle, water bottle. Okay students, 8th one is water bottle. 9th one is basket plus ball, basketball. You can see the picture of a basket. BASKET, basket plus ball, BALL ball, basketball. BASKET basket, BALL ball, बास्केटबॉल. बास्केट यानी टोकरी, बॉल यानी जो खेलते हैं. तो बास्केटबॉल हमें एक न्यू वर्ड तैयार हुआ है, न्यू वर्ड मिला है. बास्केट प्लस बॉल, बास्केटबॉल. 10th वन इज वॉच प्लस मैन, वॉचमैन. 10th वन है वॉच प्लस मैन. वॉच यानी घड़ी और मैन यानी आदमी. तो वॉच प्लस मैन, न्यू वर्ड क्या मिला है? वॉचमैन. WATCH watch, MAN man, watchman. Now every building you have seen the watchman. In our school also you see the watchman near the gate. Watchman. So students, you will draw the image of lesson number 21. बच्चों आपको ये नोटबुक में भी ड्रॉ करना है और लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, आप आपके पेरेंट्स का हेल्प लेके नोटबुक में ड्रॉ करो और इसका आंसर लिखो, क्योंकि ये इंग्लिश रिवीजन जो ग्रामर है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड लेसन नंबर 20 ऑल अबाउट माई सेल्फ. हमने आज 2 लेसन्स पढ़े. लेसन नंबर 20 माई सेल्फ आपको न्यू पेज पे लिखना है आपके नोटबुक में. उसके बाद आपको लिखना है लेसन नंबर 21 वर्ड्स इन द न्यू पेज एंड यू विल ड्रॉ द पिक्चर ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, हियर आई हैव कंप्लीटेड द इंग्लिश ग्रामर रिविज़न. बच्चों, अब इंग्लिश ग्रामर रिविज़न यहीं पे ख़त्म होता है. अब हमारे नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में मैं पूरा रिविज़न आपको कवर करूँगी जो एग्ज़ाम में आएगा, इंग्लिश प्लस ग्रामर. तो आपको रिवीजन लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको आपके नोटबुक में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, यू विल राइट द इंग्लिश रिवीजन इन योर नोटबुक. सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट इट इन योर नोटबुक. स्टे होम, स्टे सेफ, stay connected for the next English online lecture. Till then students, stay home. Okay students.